अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दिस इज अमानुल्लाह एंड as per our basically course outline, in this week we have to basically discuss about the matrices, very brief introduction about the matrices. So in this session we will discuss about basic definition of matrices and basic types of the matrices. So let me to start. Before we start the matrices, first of all, I would like to discuss an example. Like example, what are the outcome first? What are the outcome of the matrices? After studying this chapter, you will basically able to deal with the matrices, about matrices, how to operate the matrices, means how to perform the basic operation on the matrices, and you may also basically solve the system of linear equation by using matrices. And overall, the main reason of the matrices is also to deal with the system of equations. So the example is matrices are everywhere. If you have used a spreadsheet such as Excel or Lotus, written a table, you have used a matrices. Matrices make presentation of numbers clear and make calculation easier to program. Look at the example. Say suppose matrix below about the sale of tires in a store given by quarter and make of tires. ये जो है मैट्रिक्स जो है वो कंपनी और उसका जो है सेल्स क्वार्टरली सेल्स का जो ना वो यहाँ पर जो बताया गया है. से सपोज जैसे हमारे पास टायर स्टोन है, मिचिगन्स हैं और कॉपर्स हैं. So if one wants to know how many copper tires were sold in quarter 4, we go along the row. We go along the row like this one. And because this is a copper, so this is a row. And column, because it's a Q4, quarter 4 की बात कर रहा है, so Q4. So along this row and this column, we have basically 27. So this is just a representation of the basically information through the matrices. Actual definition of the basically matrices are a matrix whose plural is basically matrices. Matrix singular होता है और matrices जो है वो plural form होता है. Is a rectangular array of elements. The elements can be symbolic expressions or numbers. Matrix A, like say suppose A is denoted by this one. So these are the entries. And ये जो है वो basically these can be numbers, these can be symbols, these can be the name of the someone. It's depend on the basically information. What type of information basically you would like to write through the matrices. If you see, we have basically two types of entries. Either you can see it will be row wise or it will be basically column wise. So अगर हम फर्स्ट रो पे रहेंगे तो आप ये जो है सेकंड एलिमेंट जो है देखें 1 2 अप टू एन ये वेरी करता है. ठीक है, मतलब कि ये कॉलम बनते जाते हैं. जैसे जे वेरी करेगा तो ये कॉलम बनते जाते हैं. और अगर ये फर्स्ट जो एलिमेंट 1 2 एम अगर ये वेरी करेगा फर्स्ट एलिमेंट जो है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास रोज बढ़ जाएंगे. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो टू सो ऑन. So column J of A has n elements and is A1, I1, I2 up to IN. Similarly, row I of A has m elements and is basically A1, J, A2, J up to ANJ. इसकी रोज जो है सपोज वो m है और जो इसके कॉलम्स हैं वो सपोज n है. Matrix basically contains the number of rows and number of columns, and exactly we call the size of the matrix as well. So size of the matrix, if a matrix A has m rows, say suppose like this one, first row, second row, third row, fourth row up to so on. And the size of the matrix is basically m rows and n columns. The size is denoted by m cross n, like in previous slide. If we see size of this matrix, there are basically m rows and n columns.
sorry, n columns and m rows. So overall the size of this matrix, or sometimes we used to say order of the matrix, is basically m cross n. कैसे डिनोट करते हैं उसको? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 3x3 मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर लिखा हुआ है 3x3 का, और ये जो मैट्रिक्स है इसकी रोज 2 हैं और कॉलम्स जो है वो 3 है, तो ये हमने 2 3 का है. The matrix A may also be denoted by like this one, m rows and n columns. ठीक है. Each entry in the matrix is called the entry or elements. Like ये जो entries हैं इनको आप elements कह सकते हैं कि elements of the matrix or entries of the matrix. ठीक है. और जनरलाइज में जनरली उसको जो डिनोट किया जाता है वो AIJ से. I नंबर ऑफ रोज के नंबर को बताता है और J जो है वो रोज कॉलम्स के बेसिकली नंबर को बताता है. The matrix for the tire sales example could be denoted by the matrix A is, वही मैट्रिक्स जो उसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है. और इस केस में हम कहेंगे इसकी रोज जो है वो 3 है और उसके कॉलम्स जो है वो 4 है. सो दिस इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4. इट्स बेसिकली ये जो नोटेशन आपको नजर आ रही है ये मल्टीप्लिकेशन की, इट्स नॉट ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन, इट्स जस्ट नोटेशन. Yes, there is a basically symmetries between multiplication and basically this notation as well, but here just this is a, it's not an ordinary multiplication, it just shows number of first number of rows and second number of columns. So means if I say the matrix of order 3 cross 4, it does not mean basically 3/4, 3 multiplied by 4 is 12. ऐसा हरगिज नहीं होता, बस ये 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स से सब ये बताने होते हैं. सो अगेन अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई ये तो से सपोज A11 था, ये A12 A13, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में A11 A12 A13 ऐसे करेंगे, तो ये अगर आप रो वाइज जाएंगे ऐसे तो आपका J वेरी करेगा, अगर आप कॉलम वाइज जाएंगे तो आपका I वेरी करेगा. सिमिलरली अगर मैं इसमें कहूँ कि भाई 27 की पोजीशन क्या है, तो अगर इस हिसाब से जाएं तो I जो है वो 1 2 and 3 है और J जो है 1 2 3 4. So ये basically 3 4 इसकी पोजीशन होगी, which is basically position of A34, which is 27. Similarly, if I say what would be position of 15, then your answer would be I is 2 and J is 3. So A23 जो है वो आपको 15 दे देगा. So ऐसे हम जो है ना पोजीशन भी बताते हैं मैट्रिसेस की. ये तो बेसिक जो है ना वो हाउ टू राइट द बेसिकली मैट्रिक्स था और उसका ऑर्डर था. और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम डिस्कस करेंगे रो वेक्टर, इन अदर वर्ड्स रो मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर और एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, and up to so on, scalar identity. One by one we will discuss about each matrix as well. Okay, so first of all, what is a vector? A vector is a matrix that has only one row or one column. वैसे तो वेक्टर की एक और डेफिनेशन होती है, मगर ये मैट्रिक्स के थ्रू जो है ना वो इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो भी एक जस्ट एक जो है ना वो रो मैट्रिक्स जो एक वेक्टर होता है, या फिर कॉलम मैट्रिक्स जो होती है वो भी एक वेक्टर होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, रो वेक्टर्स एंड कॉलम वेक्टर्स. जैसे मैंने बताया रो वेक्टर्स में इफ अ मैट्रिक्स P हैज वन रो, it is called a row vector or row matrix, and n is the basically dimension of the row vector. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो हम उसको वेक्टर के फॉर्म में इसको डायमेंशन कहते हैं, और मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कहते हैं कि एंट्रीज कितनी है. ठीक है, n एंट्रीज है. सिमिलरली कॉलम में हमारे पास वेक्टर है, सो कॉलम वेक्टर में भी हमारे पास ये जितनी भी हैं वो इस मैट्रिक्स में एंट्रीज हैं. इसकी डायमेंशन m है अगर वेक्टर के रिस्पेक्ट से देखा जाए, और अगर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो ये इसकी m जो है ना वो एंट्रीज हैं. अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप कहेंगे एक ही रो है और n कॉलम्स हैं, सो 1 क्रॉस n. सिमिलरली यहाँ पर एक ही कॉलम है बाकी m रोज हैं, तो यहाँ पर m क्रॉस 1 जो है ना, सो 1 क्रॉस n and m क्रॉस 1. 1 क्रॉस n is a row matrix and m क्रॉस 1 is a column matrix as well. An example of row vector or matrix is follows. Say suppose we have the matrix P and entries of the matrix P are 25, like 23 to 0 to so on. Not so on, but there are only 5 elements in the matrix. So in this case, you can say the matrix of order is basically 1 row and 5 columns. So 1 by 5.
in other words, if you see in terms of vectors, you can say the vector of dimension 5, 1 2 3 4 5. So 5 जो है dimension. Similarly column vector भी ऐसा ही हमने रखा है, ठीक है. उसकी जो है मैट्रिक्स जो है वो उसका ऑर्डर जो है वो 3 by 1 होगा और डायमेंशन ऑफ वेक्टर जो है वो दैट विल बी 3. ओके, अगेन मैट्रिक्स पे आ जाते हैं. अब उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है बेसिकली इन अदर वर्ड्स बेसिकली थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. एज पर माय स्लाइड्स इट्स बेसिकली थर्ड टाइप व्हिच इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे कब व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. ये ऐसी रोज हैं, ये जितनी भी रोज हैं और ये ऐसे कॉलम्स हैं, ये जितने भी कॉलम्स हैं. सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम आ जाए, अगर वो एम और एन सेम आ जाए तो उस केस में हम कहेंगे वो मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर हमारे पास ये जो एंट्रीज हैं जिसमें आई और जे सेम हो, से सपोज A11, A22, A33, A44, A55 अप टू ANN. सो इसको हम बेसिकली इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है. लाइक एंट्रीज A11, A22, ANN आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a square matrix. Sometimes the diagonal of the matrix is also called a principal or main diagonal of the matrix as well. इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहें, मेन डायगोनल भी कहें, जस्ट डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स. डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स वैसे तो दो टाइप के होते हैं, एक जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं, प्राइमरी डायगोनल, एक सेकेंडरी डायगोनल भी होते हैं ऐसे. मगर मोस्टली जो हमारा फोकस होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल्स पे होता है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है. वी विल आल्सो बेसिकली discuss and use these diagonal and to solve different type of systems. The examples of the suppose square matrix is, we have the matrix is this one, the number of rows 1 2 and 3, number of columns 1 2 and 3. So this is basically 3 by 3 matrix. और वो फिर मैंने कोई भी जस्ट रेंडमली ऐसे वैल्यूज इसमें पुट की हुई हैं और ये ऑर्डर उसका जो 3 by 3, ठीक है. और अगर इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को देखा जाए तो A11, A22, A33, A11 अगर देखें तो 25 है, A22 will be 10, A33 will be 7. So basically these are the elements of diagonal elements of the given matrix. Okay. उसके बाद ही एक और टाइप है जिसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आप इसको इन एलिमेंट्स को रहने दें तो ये आपको एक ट्रायंगल नजर आएगा. दिस ट्रायंगल इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर. ये अपर ट्रायंगुलर कब होगा? जब रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बिलो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो हो, ठीक है. जो बिलो ऑफ द एलिमेंट जो है ना डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है. स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है. कब? इफ द बिलो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है. या फिर हमने इसको किसी और तरीके से भी डिफाइन किया हुआ है मैथमेटिकली. स्क्वायर मैट्रिक्स A which is Aij is upper triangular if Aij is equal to 0 for all for I is greater than j. अब यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ये I भी 1 है, j भी 1 है. यहाँ पर I 2 है, j 1 है, तो यहाँ पर 2 1 से ग्रेटर तो ये 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगला जो आएगा A31 आएगा, वो भी 0 होगा, A41 भी 0 होगा, A51 भी 0 होगा, अप टू AM1 भी 0 होगा. सिमिलरली ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप यहाँ पर इस पे गौर करें, 2 is greater than 1 is 0, 3 is greater than 1 is 0, 3 is greater than 2 is 0. So these elements will be 0. ये तो 3 by 3 का था. अगर हमारे पास 4 by 4 का आ जाए तो वैसे हम देखेंगे. So rest of the element जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और एक आपको ये ट्रायंगल भी नजर आ रहा है. So this is a basically upper triangular matrix, ठीक है, जिसमें below of the diagonal elements 0 आ जाए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है बाबा. जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है. मगर इसका एग्जांपल जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जैसे ये मैंने दिया हुआ है, ये 0 है और ये यहाँ से ये हो सकता है. अच्छा, ये इस पे हमने डिस्कस नहीं किया कि तमाम के तमाम 0 हो या ना हो भी सकते हैं, कुछ 0 भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, मगर बिलो जो है वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स में 0 होने चाहिए, ठीक है. ये कंडीशन है. Okay, lower triangular matrix is like same.
in upper triangular we just remove all the below diagonal elements is 0, and in this case we will basically take upper element of the diagonal elements, ठीक है, या above elements of the diagonal elements, ये जो है, ठीक है, ये 0 आ जाए डायगोनल के राइट पे या अबव द डायगोनल जो है ये 0 आ जाए तो हम कहेंगे वो फिर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा. और फिर another basically definition is a square matrix A which is Aij is lower triangular if Aij is 0 for I is less than j. I less than j, अब आते हैं I less than j. I less than j कौन सा होगा? 1 is less than 2, yes it's 0. 1 less than 3, it's maybe 0, sorry it must be 0. A2, 2 is less than 3, it must be 0. So these three elements must be 0. Then this matrix is known as basically lower triangular matrix, like this one. So this is a lower triangular matrix. Okay. We have another kind that is known as basically diagonal matrix. Just keep in mind ये जितने भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डिस्कस किए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो तमाम के तमाम स्क्वायर मैट्रिक्स हों. डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही जो है ना हम बनाते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम की तमाम क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए. मगर एक बात जरूर ध्यान में रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स कंसिस्ट मोस्टली ऑफ जीरोस एंड हैव नॉन जीरो एंट्रीज ओनली अलोंग द मेन डायगोनल. ये आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखना. अच्छा, अलोंग द मेन डायगोनल में सारी एंट्रीज का नहीं कहा, फिर हमने इसको मैथमेटिकली यहाँ पर बताया हुआ है. हमने ये कहा है कि कोई मैट्रिक्स जो है ए आई जे 0 हो अगर आई और जे आपस में सेम ना हो, ठीक है, वो तमाम के तमाम 0 आ जाए. एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ए आई इज नॉन जीरो. जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें कोई एक एटलीस्ट ऐसा हो जो कि नॉन जीरो हो. सारे नॉन जीरो तो हो सकते हैं मगर कम से कम जो है ना वो एक नॉन जीरो हो, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे. से सपोज वी हैव 3x3 मैट्रिक्स, ये हमने एग्जांपल लिया हुआ है एक छोटा सा. यहाँ पर कहा है कि अगर ए आई जे को 0 लेना है जब आई और जे इक्वल ना हो. 1 और 2 इक्वल नहीं है, ये 0 होगा. 1 3 इक्वल नहीं है, 0 होगा. 2 3 इक्वल नहीं है, 0 होगा. 3 2 इक्वल नहीं है, 0 होगा. 3 1 इक्वल नहीं है, 0 होगा. Rest of the elements जो बचेंगे, this type of matrix is known as basically diagonal matrix. और A11, A22, A33 का ये कहा गया कि वो एटलीस्ट कोई एक नॉन जीरो हो, और तमाम के तमाम अगर नॉन जीरो हो तो हो सकती हैं मगर एटलीस्ट एक. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 3x3 मैट्रिक्स है. फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो ली हुई है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स को 0 ले लिया, थर्ड को नॉन जीरो ले लिया, तो ये भी आप इसको भी आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हो. दिस इज द डायगोनल. और ये अगर यहाँ पर 5 आता है तो फिर भी आप कहते हैं कि वो भी डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा. ठीक है. आफ्टर द डायगोनल एलिमेंट्स वी हैव ए स्केलर मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जो है ना इसको डिस्कस करते हैं. अब इसमें ये है, इसकी डेफिनेशन को पहले सुने. डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर. सबसे पहले डायगोनल हो फिर वो स्केलर होगी इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर द सेम. जो डायगोनल एलिमेंट्स जो थे वो तमाम के तमाम सेम आ जाए. ठीक है. पहले तो हमने कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स में सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 ना हो, और यहाँ पर कह रहा है कि वो तमाम के तमाम सेम भी हो. तो इसका मतलब कि कोई नॉन जीरो स्केलर नंबर होगा, ठीक है, जो कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स में सेम होगा. और इन अदर वर्ड्स द मैथमेटिकल डेफिनेशन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए व्हिच इज aij, ये एंट्रीज हैं, इज अ स्केलर मैट्रिक्स इफ aij इज 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j. ठीक है, जो डायगोनल की डेफिनेशन थी. अब यहाँ पर ये कहा गया कि फिर जहां पर आई और जे सेम हो उस केस में आपका कोई नंबर के जो ना आ जाए. जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है ए आई जे जो इक्वल नहीं है उनको 0 कर दिया, ये 0 है. जहां पर आई और जे इक्वल है वो तो होगा A11, A22, A33, और वो कोई फिक्स नंबर हो, कोई कांस्टेंट सेम हो. तो हमने कोई 3 ले लिया है, आप 2 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे, अप टू सो ऑन. ठीक है. सो ये जो है ऐसी मैट्रिक्स है जो इस डेफिनेशन को मीट कर रही है, जहां पर हमने कहा कि ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर द सेम. ये डायगोनल एलिमेंट्स उसके जो है वो तमाम के तमाम सेम हो, तो उस केस में आपका ये जो है. ओके. आफ्टर स्केलर मैट्रिक्स वी हैव बेसिकली आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. और
ये भी एक एक्सटेंशन है, जैसे प्रीवियसली हमने देखा है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। इसका भी इनके साथ कनेक्शन है। कनेक्शन देखो कैसा है, यहाँ पर कहा गया कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले वो डायगोनल हो विद ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1। वो उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर वो इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, aij is equal to 0 for I is not equal to j. This is the definition of diagonal. And rest of the entries a11, a22, a33 should be equal to 1. अगर आप इसको रिलेट करें विद स्केलर मैट्रिक्स के साथ, तो वहां पर हमने कोई भी नंबर कहा था फिक्स, यहाँ पर उसको अगर कोई भी नंबर नहीं, अगर वो 1 हो जाए तो उस स्केलर मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स ए, मैथमेटिकल डेफिनेशन कि वो 0 होगा अगर आई और जे सेम ना हो, और 1 होगा अगर आई और जे सेम हो। जैसे ये हम 3x3 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लिखा है मैंने, a11 is 1, a22 is 1, a33 is 1, and rest of the elements are basically 0. Similarly, if you see this one, we have a11, a22, a33, a44. This is a 4x4 matrix and ये diagonal elements जो है उसके वो 1 है। ठीक है, और इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको फिर डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हो, फिर इसका रिवर्स पॉसिबल होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में हमने ये कहा था कि डायगोनल एलिमेंट सेम हो। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वो जितने भी, अच्छा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसको हमने कहा कि वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, मगर ये स्केलर मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। सो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स एंड एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हर स्केलर जो होगा वो डायगोनल होगा, मगर हर डायगोनल मैट्रिक्स जो स्केलर नहीं है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये इट्स अ डायगोनल बट इट्स नॉट अ स्केलर। But every scalar matrix is a diagonal matrix, yes, and every diagonal matrix is a triangular matrix. वो या तो अपर ट्रायंगुलर होगा या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और हर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है या हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता, बट हम ये कह सकते हैं कि एवरी बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल। तो इसका कन्वर्स हमेशा जो है वो आप वापस चलते जाएं वो सारे के सारे पॉसिबल होंगे, मगर हर दो जो है ना वो मैट्रिक्स के दरमियान उनका एक दूसरे का कन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। ओके, जीरो मैट्रिक्स में ये होता है कि जितनी भी एंट्रीज है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स कोई भी हो, स्क्वायर हो या नॉन स्क्वायर, यहाँ पर हमने कहीं पर भी नहीं लिखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर नहीं होती तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको रेक्टेंगुलर अरे कहा था, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल ना हो तो वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। सो जीरो मैट्रिक्स में फिर ये होता है कि जस्ट उसके एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट जितने भी हैं वो जीरो आ जाए। जैसे ये जीरो है, ये जीरो है, इसको भी जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, इसको भी जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, बोथ आर जीरो मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/3, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3. We have another matrix which is known as basically symmetric matrix. Symmetric में क्या होता है उसको थोड़ा गौर करना। Matrix Aij is said to be symmetric. ये symmetric होगी कब होगी, जितने भी Aij जो हैं वो इक्वल आ जाएं Aj के। ठीक है, मतलब कि जो Aij पे से सपोज ये A12 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो भी A12 ही होगा। ठीक है, मतलब कि A12 एंड A21 सेम आ जाए, A12 एंड A21 अगर सेम आ जाए, जैसे ये A12 है और ये भी A21 को भी A12 कर दिया है, तो ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे। आप डायगोनल के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऐसे देखें, A12 ये सेम आना चाहिए, यहाँ पर A13 और ये A13 ये भी सेम आना चाहिए, A23 यहाँ पर भी A23 ये भी सेम आना चाहिए। अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली अगर उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है मैंने, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के रेस्ट आप देखें, ये -2 ये -2, उसी लाइन के तहत ये A12 की पोजीशन पे है और ये A21 की पोजीशन पे, दोनों सेम है।
ठीक है, A13 की पोजीशन, A31 की पोजीशन ये है, ये और ये दोनों सेम है। A23 की सॉरी A3 एंड 2 की पोजीशन और ये जो है वो A2 एंड 3 की पोजीशन, ये और ये देखो सेम है। जैसे ये मैंने लाइनें लगाई हैं वैसे ही अगर ये एंट्रीज सेम आ जाए उस टाइप के मैट्रिसेस को हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। तो अगर सिमेट्रिक हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक भी होंगी। चलो डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सेम इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ aij इज इक्वल टू माइनस aji, मतलब कि जो a12 है तो a21 पे नेगेटिव एलिमेंट हो वही होगा मगर नेगेटिव एलिमेंट्स होगा एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पर ये a12 है तो उसका यहाँ पर क्या आ गया है नेगेटिव a12, a13 है तो यहाँ पर नेगेटिव a13। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए था, उसके साथ जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। a23 है तो उसका नेगेटिव a23। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा है, इसमें भी आपको पता चल जाएगा। और ये स्क्वायर होना लाजमी है, देखो ये बार बार में लिखा है मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स। These are the diagonal elements. So now if it is positive, it must be negative. Same elements हो negative हो। ये A12 की पोजीशन A21 की पोजीशन पे है और ये A12 की पोजीशन पे। ये जो है A31 की पोजीशन पे है और A13 की पोजीशन पे। अगर ये नेगेटिव है तो ये फिर पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर इस एलिमेंट को देखें आप, ये A32 की पोजीशन 3 और 2 की पोजीशन पे है और ये A जो है 2 एंड 3 की पोजीशन पे। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन जो है ना होल्ड करता है इन मैट्रिक्स में तो उसको आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे। तो ये था ओवरऑल आज का हमारा जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द मैट्रिसेस। और सेकंड फिर हम जो है ना वीडियो में हम बनाते हैं कि how to operate basically, how to perform the operation between the matrices. Basic operations are basically addition, subtraction, multiplication. Is it clear?